Welcome to English grammar class. Today we will do our first preparatory assignment, chapter number 7, nouns. Nouns क्या होते हैं? A noun, as we know, is the name of a person, place, animal or thing. Noun क्या होता है? किसी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस जगह का नाम, कोई एनिमल्स और कोई चीज़ हो सकती है. हम फर्स्ट प्रिपरेटरी असाइनमेंट क्या करेंगे? नाउन्स. आप सबने ये एक्सरसाइज की हुई है, तो हम इसको सिर्फ रिवाइज करेंगे. अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस. इलाहाबाद इज नोन फॉर द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती. तो इसमें कौन कौन से नाउन है? इलाहाबाद, गंगा, यमुना एंड सरस्वती. वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू आगरा विद अवर टीम. ट्रिप, आगरा एंड टीम. The fireflies are capable of producing light. Fireflies or light. Our village has a beautiful church. Village, church. Yak wool is very expensive and rare. Here is yak wool. तो हमने क्या करना है, इसमें जो वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना है, जो कि हमारे नाउन्स हैं. A monkey climbed the mango tree in our courtyard. Monkey, mango tree and a courtyard. Add some pepper to the salad. Pepper and salad. Ruma was curly hair. Ruma and curly. My mother got some eggs, cookies and flowers from the market. Mother, eggs, cookies, flowers and market. Our parents along with my aunt, nephew and friends visited us in the hospital. तो इसमें पेरेंट्स, आंट, नेफ्यू, फ्रेंड्स एंड हॉस्पिटल. जो भी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फेमस पर्सन होते हैं, हम उन सबको अंडरलाइन करेंगे. एंड सेकेंड वन हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स with appropriate nouns. The largest land mammal is called an African elephant. My mom used egg, milk and chocolate to bake a cake. Owl is a nocturnal bird. Mango is a yellow colored fruit. We need paint to change the color of this wall. A large water body of saline water is called an ocean. A room with a collection of books is called a library. A precious yellow colored metal used for making jewelry is called gold. Part of body that we use to speak is vocal cord. The stars shine brightly at night. तो नेक्स्ट वी क्या करेंगे? हम नेक्स्ट अपना चैप्टर करेंगे 16. दिस वन इज़ आर्टिकल्स. तो हम इसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए, an or the. You know the letters A, E, I, O, U are known as vowels. All the others letters to be alphabetical known as consonants. We use A when nouns we are using begins with a consonant sound. A bat, a man, a tiger, a cow. तो हम का एन कहाँ पे यूज़ करेंगे? एन when the noun we are using begins with a vowel sound. जो हमारे वाउल्स हैं उनके साथ हम ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हम एन यूज़ करेंगे. हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट इज it is the way we pronounce a word that tell us whether we use a or an before it, and not only the spelling. We use the word university, then we use a. This is because when we say university, we pronounce it with a y sound at the beginning, as thought it first spelled university. Hence a university is correct and not an university. तो हम यूनिवर्सिटी के साथ क्या करेंगे? ए यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो हम उसे यू करते हैं, ना कि यू. Similarly, when we say words hours, then we use an. हम hours के साथ an यूज़ करते हैं. टाइम है जो हमारा, उसके साथ हम an यूज़ करते हैं. There are two types of articles, identify articles और definite articles. Indefinite articles and definite articles. A and an हमारे indefinite हैं और the हमारा definite है. A and an are the indefinite articles. They are used before nouns. They are talk about something or someone you have and have not mentioned before. जो कि हमारे ए एंड एन है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं जो कि बिफोर नाउन्स के बाद इनके यूज़ किए जाते हैं. ए एंड एन आर यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोफेशन. में भी हम ए एंड एन यूज़ करते हैं. वी यूज दैट when we know that the person we are talking to knows or can work out what particular person or thing you are talking about. तो हम द कहाँ पे यूज़ करते हैं? द हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, और हम क्या किसी वर्क के बारे में बात करते हैं तो वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द. वी ऑल्सो यूज़ द when we have already mentioned the things we are
टॉकिंग अबाउट, जब हम किसी चीज़ को मेंशन कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम टॉक करते हैं, तो उसके वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। वो यूज़ द टू टॉक अबाउट अ जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे हम यूज़ कर सकते हैं जियोग्राफिकल के लिए, रिवर्स, ओशन एंड सीज के लिए हम द यूज़ करते हैं। सर्टन नाउन्स व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, तो जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सी थिंग हो रही होती है वहाँ पे भी हम द यूज़ करते हैं। द डज नॉट मीन ऑल, द का मतलब ऑल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द क्लाउन्स आर फनी, दिस सेंटेंस डज नॉट से दैट ऑल क्लाउन्स आर फनी, इट मीन्स दैट द क्लाउन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और रेफरिंग टू आर फनी। तो हम यहाँ पे ऑल क्लाउन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम when we are talking about countries like India, Pakistan, Burma and Bangladesh, we do not use an article. For example, India is the second largest democracy in the world. Bangladesh is known as its famous Dhaka sari. However, we use the when we are talking about countries like UK, the USA and the Irish Republic. तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? UK के लिए, USA के लिए हम द यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? A, B एंड C। तो हमारी फर्स्ट वाली कौन सी है? डिक्शनरी, अ बैग, एन आवर, अ हाउस। तो हमें सबको पता है कि इसमें हम A एंड एन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल में। वी ऑलरेडी लर्न इन अवर लास्ट प्रीवियस असाइनमेंट्स। सो हमें ये सब अपने असाइनमेंट में कर लिया है, तो हमें जस्ट इनके बारे में रिवाइज करना है और हमें इन तीनों, तो हमने यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो हमारा आर्टिकल्स हैं उनको पुट करना है और नेक्स्ट वन में करेक्ट करना है ईच दी सेंटेंस। इसमें से हमने टिक करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो किसके साथ होगा ये हमारे द वाले सेंटेंसेस होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल। तो हमें यहाँ पे इस ब्लैंक्स में आर्टिकल पुट करने हैं और यहाँ पे आर्टिकल पुट नहीं होता वहाँ पे हमें क्रॉस करना है। तो हमने ये सब अपनी बैक एक्सरसाइज में किया हुआ है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड बोथ लेसन्स। गुड लक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।